माइक, ये लोग विदाउट माइक, विदाउट माइक। Jai Hind everyone, myself Sakshi Rai and I am delighted to welcome Professor Dr. Vijay Vishwakarma sir. It gives me great privilege to introduce our resource person of the day, Ms. Sumaya Rathore. She is operation head and her team from Revive Heart Foundation, ICAN, Holy Family Hospital, Mumbai are certified trainers on first aid heart safety and CPR and have received BLS certification from American Heart Association. They have had numerous workshops on how to handle cardiac arrest emergency and have trained over 1,50,000 citizens, including frontline force and focus of country in last 5 years. That include police officials, railway officials, and firefighters of various states. This number continues to increase each year. They have been felicitated by the Society for Welfare, Heart Failure, and Transplantation for their pioneering work on teaching CPR. We would also like to welcome Mr. Atharva Rajesh sir, Mr. Rajesh Chavan sir, and Vilma D'Souza, Mr. Amod Ladwa sir. I would also like to acknowledge the presence of students who have joined us. Now I would like to call out to you Dr. Vijay Vishwakarma sir to felicitate Mr. Mehra. फोटो लेना, इसलिए फोटो ले में तुम्हें NSS clap goes. Welcome back. We are honored to have you with us. I would like to request Sumaya ma'am to take over this session. Over to you, ma'am. Thank you very much. No, not recording. Thank you very much, sir, for inviting us, and very good morning, students. Good morning, ma'am. So today we're going to have a nice interaction session. Nice to see bright faces. Sabka breakfast, chai, coffee ho gaya na? Yes, ma'am. Very good. So my name is Sumaya. I have with me my team, and we are from Revive Heart Foundation, like Holy Family Hospital, which is in Bandra West. कितने लोगों को पता है होली फैमिली हॉस्पिटल बैंड्रा वेस्ट? ओके, बाकी लोग कभी बैंड्रा आते नहीं है? नहीं आते? बैंड स्टैंड नहीं आते? शाहरुख खान का घर, सलमान खान का घर देखने के लिए आए तो होंगे। यस, अगर आगे नेक्स्ट टाइम आएंगे तो प्लीज वो रास्ते में ही है हमारा हॉस्पिटल, राइट हैंड साइड में देख लीजिए, चैरिटेबल हॉस्पिटल है। सो प्लीज पास बाय एंड देख लीजिए हमारा हॉस्पिटल नेक्स्ट टाइम बैंड्रा आएंगे, बॉलीवुड का घर देखने के लिए। चलिए, सो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, हमारे डॉक्टर्स हैं वहाँ के, डॉक्टर ब्रायन पिंटो, डॉक्टर यश लोकरवाला और डॉक्टर मंजू सिन्हा। उन्होंने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त जो डॉक्टर्स थे कार्डियक अरेस्ट के शिकार हुए। डॉक्टर देसाई वाज स्पीकिंग बिटवीन डॉक्टर्स एंड ही कोलैप्स्ड, हैड अ कार्डियक अरेस्ट। अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट रिवाइव हिम। डॉक्टर राकेश सिन्हा, मैराथन रनर, एंड वन डे ही वाज जॉगिंग अप पाली हिल, जो हमारे हॉस्पिटल के बहुत करीब है, वहां पे कोलैप्स हो गया। But unfortunately, by the time they rushed him to our hospital, he too was declared dead. तो वैसे ही हमारे देश में बहुत सारे लोग को कार्डियक अरेस्ट होता है, लेकिन बचते नहीं है क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। पीपल डू नॉट नो कि अगर आपके सामने से कोई गिरता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, तो आपको क्या करना चाहिए मेडिकल हेल्प आने तक। सो दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, एंड फ्रॉम देन टिल नाउ हम लोग ने 1.5 लाख लोग से ज्यादा को ट्रेन किया है, जिसमें पुलिस पर्सनल है, रेलवेज है, ट्रैफिक पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, कॉर्पोरेट्स है, मेंबर्स ऑफ सोसाइटीज भी है, एंड इस वजह से बहुत सारे जाने भी बची है। सो वंस अगेन हमारे वी हैड सेशन विद यू ऑल बिफोर आल्सो, लेकिन ऑनलाइन सेशन हमने किया था।
So we are having a live session now, which is very good, ताकि आप सबको practical knowledge मिले. You will all come at the end of the session, try your hands on the mannequin, do CPR. Right? So let's start off with the topic sudden cardiac arrest. बहुत कम लोगों ने सुना है, लेकिन हार्ट अटैक सुना है. So first tell me, हार्ट अटैक किस किस ने सुना है यहाँ पे? सुपर. कार्डियक अरेस्ट किस किस ने सुना है? थोड़े हाथ कम है. So first thing we need to understand today is that a heart attack and a cardiac arrest are two different things. So coming to a heart attack first. Heart attack जब होता है जब हमारी दिल की नसें ब्लॉक हो जाती है. उसके बहुत सारे कारण हैं. लॉन्ग टाइम डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग की अगर आदत है, मैं नहीं पूछूंगी कौन स्मोक कर रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर कर रहे हो तो प्लीज नहीं करना, इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ. सो कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, स्मोकिंग, ये सारी चीज की वजह से दिल की नसें ब्लॉक हो जाती है और खून ठीक से नहीं पास होता. सो बताइए क्या होता है हार्ट अटैक में? एवरीबडी इज हर्ट ना? बताइए क्या होता है हार्ट अटैक में? ना, वो तो है ही, लेकिन होता क्या है? छाती में दर्द और क्या? हार्ट बीट को छोड़ दो. सिम्टम्स क्या है? चेस्ट पेन, स्वेटिंग, जॉ पेन, नॉशिया, लेफ्ट आर्म पेन, बैक पेन. आदमी बैठ जाता है, बोलता है मेरी तबीयत ठीक नहीं, बहुत छाती में दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाइए. सो व्हाट डू? You put this person in a taxi or a car and rush this person to the hospital. This is a heart attack situation. But a cardiac arrest is totally different. अलग चीज है. जो हमारा दिल ऐसे धड़कता है, आप सबका भी दिल ऐसे धड़कता है. Cardiac arrest में the heart just stops. And because the heart stops, the person just collapses wherever he is. Could be in the house, on the street, on a railway station, in a mall. कहीं पे भी है, अगर दिल बंद हो गया आदमी कोलैप्स. अब बताइए दिल का फंक्शन क्या है? क्या करता है हमारा दिल? Pumps blood to the various parts of the body and to our brain. So अगर दिल बंद हो गया तो ब्रेन तक भी खून नहीं पहुंचता. And if the blood doesn't reach the brain in 3 minutes, the brain goes into a damaged condition. Person goes into a coma. And 10 minutes person is gone. Now tell me, आपके सामने से कोई कोलैप्स हो गया, 3 मिनट में इसकी मदद कौन करेगा? Will you reach a hospital in 3 minutes? Will an ambulance come to you in 3 minutes? या कोई डॉक्टर आएगा मदद के लिए 3 मिनट में? चांस ही नहीं है. कौन मदद करेगा? आप सभी मदद करोगे. But when are you going to help? When you know what to do. If you don't know what to do, you're going to take this person to the hospital. So we are here today to tell you what you need to do in these 3 crucial minutes. But when I say somebody collapses in front of you, हर collapse cardiac arrest तो नहीं होता. गिरने के कितने अलग अलग कारण हैं. सुबह को नाश्ता नहीं किया, sugar level drop, person has collapsed. मिर्गी हुआ, fits, another reason of collapse. Overdose of medication, another reason of collapse. या दारू पी के भी आदमी गिरता है. कितने अलग अलग कारण हैं. So the first thing we are going to teach you today is how to recognize. आपको पहचानना है कि आपके सामने जो गिरा है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से गिरा है और कोई वजह से गिरा है. Secondly, we are going to teach you how to do CPR या cardiac massage. And third thing we are going to teach you is how to use this machine. किसी ने मशीन देखा है कहीं पे? इसको बोलते हैं AED, Automated External Defibrillator. ये शॉक मशीन इसको बोलते हैं, क्योंकि ये मशीन दिल को शॉक देती है ताकि अपने आप पंप करना शुरू कर दे. बट ये डॉक्टर के लिए नहीं है, आपके लिए है. पिक्चर में आपने देखा, डॉक्टर लेके जाता है ऑपरेशन थिएटर में, से झटका देता है, ठीक हो गया. ये मशीन वही काम करती है. हॉस्पिटल में बड़ी मशीन है, ये छोटी सी पोर्टेबल है. विद विच आवर प्रोजेक्ट हम लोग ने वेस्टर्न सबर्ब्स में बहुत सारी जगह लगाए. एयरपोर्ट्स में बहुत सारे दिखेंगी आपको, मॉल्स में भी दिखेंगी. तो हाउ टू यूज दिस ऑल्सो वी आर गोइंग टू टीच. So let's start off with the presentation. छोटे वीडियोस हैं, very non technical language में we are going to teach you. End of the session जो भी सवाल आपके मन में है पूछ लेना, and then we will call you to do CPR. Clear? चलो let's start off. Next. क्या हो गया? चेंज नहीं हो रहा है? टेक्निकल एक्सपर्ट कौन है यहाँ पे? चलो आगे.
let's start off with this. Let's start off with an observation. आप सब जो आते हैं कॉलेज में आते हैं, ट्रेन से आते हैं, मेट्रो से आते हैं, बस से आते हैं या गाड़ी से आते हैं, जो भी है, आप कभी रास्ते में हो और आपने देख लिया कोई कोलैप्स हो गया, तो क्या लोग मदद करते हैं या नहीं? कोई कितने बोल रहे करते नहीं करते? हाथ ऊपर कीजिए। अरे हाथ ऊपर करने के लिए भी डर रहे हो यार, नहीं करते। और कौन लोग बोल रहे करते हैं? सो इट इज 50-50। मोस्टली नहीं करते। Let me tell you that. थोड़े लोग करते हैं लेकिन मोस्टली नहीं करते। अब जब मैं बात कर रही हूँ ना, तो मैं ही बात करूंगी, आप सबको सुनना है। मोस्टली लोग नहीं करते। अब बताइए क्यों नहीं करते? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा क्यों मदद नहीं करते? हाँ, वो लोग को पता नहीं क्या करना, पता नहीं है क्या करना है। करेक्ट। नेक्स्ट, पुलिस से डर लगता है। यार हमने मदद की, पुलिस हमको ही 10 सवाल पूछेगी, किसको झंझट में करना है। एनी मोर रीजन? यस, डर जाते। किससे डर है? मुझे इससे नुकसान ना हो जाए। हाँ, हम थोड़ी डॉक्टर है, हमने कुछ किया, बेचारा मर गया तो हमारे ऊपर आ गया। तो ये बहुत सारी वजह है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ द रीजन। एक तो वरीड अबाउट द पुलिस, हमको डर लगता है पुलिस से। सो प्लीज अंडरस्टैंड, 2016 द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे हैज स्टार्टेड दिस गुड समैरिटन लॉ। उनको पता था कि लोग मदद नहीं करते बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। सो द गुड समैरिटन लॉ, बट ये लॉ बोलती क्या है? द लॉ सेज कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो आपको पुलिस से अपना आइडेंटिफिकेशन शेयर करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका एड्रेस, नाम, नंबर देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पुलिस को। और अगर आप किसी को हॉस्पिटल भी ले गए एडमिट करने के लिए, तो वहां पे भी आपको कुछ एडमिटेंस फी नहीं देना है। ऐसा नहीं कि हम हॉस्पिटल ले गए उधर हमको ही पैसा भरना है, नहीं। सो यू डू नॉट नीड टू शेयर योर आइडेंटिफिकेशन, यू डू नॉट नीड टू पे एनी फीस। ये सेशन के बाद गूगल दिस लॉ, गुड समैरिटन लॉ, उसके बारे में और भी जानकारी पाइए, बिकॉज पीपल डू नॉट नो अबाउट दिस लॉ। इस वजह से मदद नहीं करते। तो उसको गूगल कीजिए और जानकारी पाइए, एंड डोंट बी अफ्रेड टू हेल्प। ये लॉ आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। सेकेंड रीजन कि हमको आता ही नहीं है क्या करना, तो क्या करें? सो दैट यू विल लर्न टुडे, आज। एक और चीज है, इन्फेक्शन से हमको डर लगता है। भले सब लोग बोलते हैं कोविड है, नहीं है, बट मेनी पीपल आर स्टिल वेयरिंग अ मास्क। हम भी मास्क पहनते हैं बिकॉज हम हॉस्पिटल में है। सो अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, मेक श्योर यू आर वेयरिंग अ मास्क, एंड हुएवर यू आर हेल्पिंग उसके मुंह पे भी मास्क है या हैंडकरचिफ है, दुपट्टा है, ताकि कुछ इन्फेक्शन न स्प्रेड हो। क्लियर है? चलिए, सो वी नो नाउ वी आर गोइंग टू हेल्प बिकॉज ये प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो गए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। देखिए ऐसे सिनारियो है, कोई कोलैप्स हो गया है, 10-20 लोग आके खड़े हैं, मदद नहीं कर रहे जैसे हमने बोला, लेकिन एक चीज जरूर करते हैं यहाँ पे। कौन बताएगा क्या करते हैं? फोटोज, वीडियोस, फोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं। क्यों? हमको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। यस, हमको मदद नहीं करनी है, लेकिन हमको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। सो वी डू नॉट वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्राउड जो फोटो वीडियो लेते हैं, बट वी वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड दैट गोज अगेन एंड हेल्प्स। क्यों? क्योंकि हर मिनट आप सोचते हो मदद करूं कि नहीं, उसके चांसेस जीने के हट जाते 10% से। मतलब 10 मिनट आपने सोच लिया, आदमी ही खत्म। सो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम थिंकिंग, गो हेड एंड हेल्प। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इफ यू कैन सी हियर देयर आर 3 पीपल, क्रिस्टियन एरिक्सन जो फुटबॉलर है डेनमार्क के, रीमा लागू जी एक्टर है, एंड कलाम साहब जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है। बट ये स्लाइड हमने क्यों लगाया? बिकॉज क्रिस्टियन एरिक्सन इन तीनों में से सबसे लकी है। वो मैच फुटबॉल खेल रहे थे। एनीबडी सीन हिज मैच? यस, सम मेनी पीपल हैव सीन द मैच। वो खेल रहे थे, फील्ड पे कोलैप्स हो गए, बट ही इज वेरी लकी क्योंकि हमारे देश में नहीं कोलैप्स हुआ। So the moment he collapsed on the field, the paramedics ran onto the field, CPR किया, AD machine भी यूज किया, and today he is fine. But unfortunately the other two, रीमा लागू जी और कलाम सर, जिसको कार्डियक अरेस्ट ही हुआ लेकिन बच नहीं पाए। But why am I showing you the slide? If you can see 3 different age groups, young, middle age and elderly. मतलब cardiac arrest can happen to anyone, anytime. yeah. Irrespective of the age,
एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, मतलब मैन वुमन चाइल्ड किसी को भी हो सकता है, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फिटनेस लेवल। अब सोचिए क्रिश्चियन एरिक्सन कितना फिट होगा, सारे टेस्ट तो कराए होंगे, फिट है एकदम खेलने के लिए, फिर भी उनको हो गया। और मतलब कोई भी एज ग्रुप में, कोई भी फिटनेस लेवल, कोई भी जेंडर में भी हो सकता है। पहले हम लोग क्या सोचते थे 60-70 होने के बाद ही दिल का प्रॉब्लम होता है। आजकल हर दूसरे दिन हमको वीडियो आता है, कोई जिम कर रहा है, बाहर आके थोड़ा अनईजी, कोलैप्स, खत्म। हैव यू सीन दोस वीडियोस और नॉट? सो इट कैन हैपन टू एनीवन एनी टाइम। ये इम्पोर्टेंट है कि सब लोग ये सीखे जो आज हम आपको सीखने वाले हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट। Now this is a very important slide. Beginning of the session मैंने आपको बोला था कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दो अलग अलग चीज है। I'm going to emphasize on this because उसकी मदद करने के तरीके भी अलग है। So coming to heart attack first, हमारा दिल क्या है? एक muscle organ which supplies blood to the various parts of the body through the coronary artery। अब ये जो है ब्लॉक होते होते जाती है because of various reasons, age, cholesterol, diabetes, smoking habits, so this artery keeps getting blocked and पूरा ब्लॉक होने के बाद हार्ट अटैक होता है। तो आप लोग ने सुना होगा कभी डॉक्टर के मुंह से कि 20% ब्लॉक है, 50% ब्लॉक है, सुना होगा ना? यस। सो वैसे पूरा ब्लॉक होने के बाद हार्ट अटैक हो जाता है। अब सोचिए आप ऐसे पार्टी में हो, फ्रेंड्स के साथ बैठे हो या कहीं फैमिली के साथ हो, एंड अ वेरी यंग पर्सन इज फीलिंग अनईजी, थोड़ा सा स्वेटिंग हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? अरे कुछ नहीं यार, आप तो इतने जवान हो, एसिडिटी होगा, नींबू पानी पी लो, डाइजीन ले लो, इनो ले लो, करेक्ट? यू विल नॉट थिंक कि कुछ हार्ट अटैक का इशू होगा। बट रिमेंबर, इफ यू सी समबडी स्वेटिंग है, चेस्ट पेन है, नौशिया है, तो इग्नोर मत कीजिए, जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाइए, बिकॉज ही कुड बी हैविंग अ हार्ट अटैक। सो डोंट इग्नोर दिस सिग्नल। कमिंग टू द सेम थिंग इन कार्डियक अरेस्ट, हमारा दिल बीट करता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, एंड सडनली अगर दिल के ऊपर झटका लगा, बॉल लग गया, पानी में डूब गया, इलेक्ट्रिक करंट लग गया, दिल बंद हो जाता है या ऐसे फिब्रिलेट हो जाता है, इसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो वही सिचुएशन लेते हैं, हम पार्टी में है, फ्रेंड्स के साथ है, सडनली आपके सामने कोई कोलैप्स हो गया, व्हाट विल यू डू? यू चेक, हेलो आर यू ओके, ठीक हो क्या आप भाई साहब? कुछ जवाब नहीं आया, व्हाट विल यू थिंक? खत्म। But remember, this person is in a cardiac arrest situation. 10-15 मिनट है उसके पास, आपको मदद करनी है। हार्ट अटैक में आदमी बोल रहा है तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल ले जाओ, मदद मांग रहा है आपसे, ये भी मदद ही मांग रहा है, खाली बोल नहीं सकता है। आपको पहचानना है और आपको मदद करनी है। तो टू डिफरेंट सिनारियोस, हार्ट अटैक, ही इज कॉन्शियस, ही इज ब्रीदिंग, ही इज टेलिंग यू ही इज नॉट फीलिंग वेल, यू आर टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल। कार्डियक अरेस्ट, ही इज कोलैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ यू, not breathing, not responding, and how to help him is what we are going to learn in the next 4 easy steps. Clear hai yaar tak? Yes. Chaliye, let's start off with the steps. Next. So let's start off with the first step. पहली चीज आपको पहचानना है कि आपके सामने जो गिरा है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से गिरा है और कोई वजह से गिरा है। So how do we do that? So assume आपके सामने कोई गिर गया, पहले या तो बैठे बैठे गिरा है, साइडवेज गिरा है, put the person on the floor, जमीन पे उसको लेटाना है एकदम सीधा। Once you do that, you have to tap both his shoulders hard and ask, "Are you okay?" Like this. Hello, sir, are you okay? Hello, sir, are you okay? यहाँ पे आपको प्यार मोहब्बत नहीं दिखाना है। You have to hit him a little hard, shout a little loudly, sense of touch and sense of sound. Both the ways we are checking if he is responding. So एक और बार देख लीजिए। Hello, sir, are you okay? Hello, sir, are you okay? जवाब नहीं आया, मतलब आपने पहचान लिया ये बेहोश है। Now you have to check whether he is breathing. So बताइए क्या अलग अलग तरीके हैं to check if somebody is breathing? How do you check? Pulse. Yes. Carotid pulse. यहाँ पे finger under the nose तो कोई बोला ही नहीं। Yes. हाँ वही। तो बहुत सारे तरीके हैं to check if a person is breathing. All these ways are not wrong. They are correct. But we are going to show you the fastest way of checking somebody is breathing, and that is by putting your hand on the abdomen. तो आप हाथ ऐसे ही रखोगे, प्रेस करोगे 10 सेकंड तक और चेक करोगे मूवमेंट है कि नहीं, ब्रीदिंग है कि नहीं। So let us all do this. सब सीधा बैठ जाइए। Keep your hand here on the abdomen. Press it a bit.
लंबी सांस लीजिए अंदर, सांस छोड़िए। आंख बंद करने को नहीं बोला, योगा नहीं करना। ऐसा नहीं कि योगा मेडिटेशन में कपालभाति स्टार्ट किया। लंबी सांस लीजिए, एक और सांस छोड़िए। कैन यू फील द मूवमेंट ओवर हियर? Yes. अरे 5-10 लोग यस बोल रहे, बाकी का क्या? Yes, yes. बाकी कोई इधर उधर देख रहे हैं, यार मेरा तो नहीं मूवमेंट हो रहा है, इसका तो हो रहा है। एवरीबॉडी ब्रीदिंग और नॉट ओवर हियर? Yes. मुझे आवाज नहीं आ रहा है। Everybody breathing? Yes. चलिए, आपको हाथ ऐसे ही रखना है 10 सेकंड तक और चेक करना है मूवमेंट है कि नहीं, सांसें चल रही है कि नहीं। अब सांसें चल रही है, आपने चेक कर लिया, मतलब ये और कोई वजह से गिरा है, उसको हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन अगर होश भी नहीं है और सांसें भी बंद है, मतलब आपने पहचान लिया ये कार्डियक अरेस्ट की वजह से गिरा है। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज नो रिस्पॉन्स, नो ब्रीदिंग, इट्स अ कार्डियक अरेस्ट, वी हैव रिकॉग्नाइज्ड इट। अब ये हम सब साथ में बोलने वाले, टुगेदर लाउड एंड क्लियर, नो रिस्पॉन्स, नो ब्रीदिंग, इट्स अ कार्डियक अरेस्ट। ओके, रेडी, स्टार्ट। No response, no breathing. It's a cardiac arrest. ये हमने पहचाने, बट ये मत सोचिए कि नो रिस्पॉन्स है, नो ब्रीदिंग मतलब ये खत्म। ये कार्डियक अरेस्ट में है, उसके पास 10-15 मिनट है, आपको मदद करनी है। तो फर्स्ट स्टेप नो रिस्पॉन्स, नो ब्रीदिंग, कार्डियक अरेस्ट हमने पहचान लिया। ठीक है, क्लियर विद द फर्स्ट स्टेप? Yes. चलिए लेट्स गो टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, यू नीड टू कॉल फॉर मेडिकल हेल्प। आप डॉक्टर नहीं हो, और अगर डॉक्टर भी है तो थोड़ी किट वगैरह उसके पास रहेगा। आउट ऑफ हॉस्पिटल कोलैप्स है, किसी के घर में है, रास्ते में है, रेलवे स्टेशन में है, सो यू नीड मेडिकल हेल्प, यू नीड एन एम्बुलेंस। आप बताइए, आप सब में किसके फोन में सेव्ड है इमरजेंसी नंबर्स? और बाकी हमारे घर में थोड़ी होने वाला है इमरजेंसी, आस पड़ोस के घर में होगा तब देखेंगे। My God. Make sure you save emergency numbers in your phone today, because an emergency can happen anywhere, anytime. वो टाइम पे आप सोचोगे आई विश मैंने नंबर सेव किया होता, आज समय बच जाता। So make sure you save the numbers in your phone today, will you? Yes. Now when I say save emergency numbers, मतलब जहाँ आप रहते हो वहाँ के आसपास के हॉस्पिटल नंबर्स, जहाँ पे आपका कॉलेज है यहाँ के आसपास के हॉस्पिटल नंबर्स आपके फोन में जरूर सेव कीजिए। एक और नंबर है 108, ये गवर्नमेंट सर्विस नंबर है, यू शुड सेव दैट आल्सो इन योर फोन। कभी आपने हॉस्पिटल कॉल किया, लगा नहीं, किसने उठाया नहीं, सो यू हैव एन ऑल्टरनेटिव नंबर। नाउ रिमेंबर व्हेन यू कॉल फॉर एन एम्बुलेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स अ वेरी पैनिक सिचुएशन। ये सुनने में बड़ा मजा आ रहा है यार, हम सुन रहे हैं नो रिस्पॉन्स, नो ब्रीदिंग, बट एक्चुअल सिचुएशन इज वेरी स्कैरी। somebody is collapsed, आपका लव्ड वन है, फ्रेंड है, वो टाइम पे अब पैनिक है, chaos है, यू मे जस्ट कॉल अ हॉस्पिटल से जल्दी से एम्बुलेंस भेजो। वो टाइम पे छोटा सा एम्बुलेंस में वार्ड बॉय आ जाएगा स्ट्रेचर लेके। लेकिन ये सिचुएशन में जब आप कॉल करें, आपको बुलाना है कार्डियक एम्बुलेंस, बिकॉज एवरी कार्डियक एम्बुलेंस हैज अ डॉक्टर एज वेल एज दैट मशीन। तो जरूरी है सेकंड स्टेप में जब आप कॉल करें, आप कौन सा एम्बुलेंस बुलाएंगे? ऑल्सो अगर ये मशीन आपके कहीं आसपास है, जैसे मैंने बोला एयरपोर्ट्स पे बहुत सारे हैं, मॉल्स में भी हैं, हमने भी लगाया है, तो ask somebody to get the nearby AED machine. So second step, you're going to call for a cardiac ambulance and this machine if it is somewhere around you. Clear है? Yes. So the first step revision क्या था? No response, no breathing. It's a cardiac arrest. Second step, you call for a Ambulance. cardiac ambulance. Cardiac ambulance. Very good, super. Chalo, let's go to step number 3. Step number 3, we are going to learn CPR or cardiac massage. So first of all, let us see कहाँ देना है ये बॉडी पे। एक इमेजिनरी क्रॉस सोचिए, दो निपल के बीच में जो सेंटर पॉइंट है, वहां पे आप दोगे चेस्ट कंप्रेशन या सीपीआर, तो आपका खुद का बॉडी आप फील कर सकते हो, हार्ट स्टर्निंग में, फिर एक सॉफ्ट पोर्शन आ जाता है, वहां पे ही देना है। याद रखिए पॉइंट वही है, आदमी है, औरत है, पॉइंट वही रहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू शो यू हैंड पोजीशंस। अगेन आई वांट एवरीबॉडी टू डू इट विथ मी। सो पुट योर डोमिनेंट हैंड स्ट्रेट, राइटी हो तो राइट हैंड, लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड, कंप्लीटली ऐसे स्ट्रेच आउट करो, स्ट्रेच आउट योर हैंड्स, एल्बो स्ट्रेट, सबका हाथ देखना है मुझे, ऐसे आशीर्वाद नहीं देना है, हैंड्स कंप्लीटली स्ट्रेट, ओपन अप योर फिंगर्स,
and interlock it from the top to the other hand. This is your position. Come on, let me see everybody's hand. Okay, great, super, perfect, very good. हाथ नीचे करिए. इसको बोलते हैं heel of the palm. This heel of the palm will come in that center point like this. और कैसे करना है chest compression? They are going to show you the position और आपको वीडियो हम दिखाएंगे. So just show them the position. कैसे करना है? Heel of the palm, center of the chest, come out on top of the person, elbow straight. ये आपका position है CPR करने के लिए. Clear है? Now we will show you a video. बाद में आपको हम नीचे करके दिखाएंगे. Now can you see on the slide आदमी को हमने लेटा दिया है. Heel of the palm, center of the chest. Position ले लिया उसने, elbow straight and he is going to start CPR. Everybody pay attention. बाद में आप बात कर सकते हो. ये बहुत important life saving skill आप सीख रहे हो. So pay attention because कभी भी आप किसी की मदद कर सकते हो. Now this CPR has to be done either from the left hand side or the right hand side of the person. सर की तरफ से नहीं, पैर के ऊपर बैठ के नहीं. Clear है? Yes. Let's watch this video now. Sound is come or no? Sound is not come? Okay, it's okay, no problem. Just play. उतना भी दे. Okay, no problem. वैसे ये करने दो. ऐसे play करो. Can you see how he's doing the compression? Yes. Hard and fast. Heel Yes. of the palm, center of the chest, elbow straight, complete pressure coming from the shoulders. आपको भी वैसे ही करना है emergency में. So 100 to 120 beats per minute, going down 5 centimeters and recoiling. This is the rate of compression. But ये rate ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा दिल ऐसे धड़कता है. 1, 2, 3, 4. With the same rate you have to do the compressions. 1, 2, 3, 4. So हम कर क्या रहे?
उसका दिल बंद हो चुका है। दिल बंद होने की वजह से खून उसके पूरे शरीर में नहीं जा रहा है और ब्रेन तक भी नहीं जा रहा है। ब्रेन तक नहीं पहुंचा 3 मिनट में तो क्या होगा? कोमा। 10 मिनट में आदमी खत्म। ये हम नहीं चाहते। So this heel of the palm becomes his heart. The moment you keep the hand in the center of the chest, you compress down and you recoil. जैसे आप chest rise करते हो, every time you do that, blood from his heart is pushed to his brain, keeping his brain alive. कितनी जरूरी चीज है ये। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन important कितना है। हर बार आप compress करके छोड़ते हो, little amount of blood is reaching his brain. But ये करना easy नहीं है। Person is on the floor, you are on your knees, giving the full pressure from the shoulders. जितने भी आप fit हो, थोड़ा compression के बाद आप थक जाओगे। And if you are tired, you will not do effective compression. But करना तो जरूरी है, तो क्या करें इस सिचुएशन में? So one thing is good हमारे कंट्री में, अगर कोई कोलैप्स हो गया, 10-20 लोग आके खड़े हो जाएंगे, फ्री के एडवाइस देंगे। जूता सूंघा, पानी फेंको, कांदा लेके आओ, जो भी है, गंदा कपड़ा सूंघा। आपको बोलना है नहीं, I know what to do. You start the compression and tell everybody around you, watch how I'm doing. The moment you feel slightly tired, tell the person in front of you, now you take a turn and do this. Then you take a turn and do this. You take a turn and do this. Let people do this turn by turn so that effective compressions are being done. While the other person is doing it, you check whether he is doing it correctly, center of the chest, call the ambulance and take some rest also. But turn by turn करना जरूरी है, लेकिन कब तक हमको करना है? So you have to continue doing this till 1 he revives, मतलब आँख खोल दिया, सांसें चालू हो गई, you will stop your compression. Secondly, आपका एम्बुलेंस आ गया, कौन सा एम्बुलेंस? तब आप उसको डॉक्टर के हवाले करोगे। और thirdly, if somebody brings this machine and gives it to you to attach the pads, you will stop. Otherwise, you're going to continue compressions. Doctors have done this even for an hour, 45 minutes and done and revived that person. तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि 10 मिनट हमने कर लिया, छोड़ो, कुछ फायदा नहीं है। आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है उसको बचाने के लिए। Remember, in a cardiac arrest situation, person is gone. क्या बुरा करोगे आप? You have to try bring this person back to life by doing what you are learning today. So chest compressions in the center of the chest at the rate of 500, 5 centimeters deep. Rate क्या है compression का? 100 to 120. सब साथ में बोलो. What is the rate of compression? 100 and 120. How deep? 5 centimeters. And doing this turn by turn till he revives or till your cardiac ambulance comes. Now I'm going to show you another video जहाँ पे आपको दिखेगा कि compression से blood कैसे जाता है brain तक और दूसरे players में. Let's watch that video. Our heart is an amazing organ. It works hard for us every second of every day, delivering blood and oxygen to every cell in our body. But when sudden cardiac arrest strikes, our heart suddenly and unexpectedly stops beating effectively and blood flow stops. Without any intervention, the brain, vital organs, and our heart will begin to die. Admitting CPR is the person's only chance of survival. Brain damage will start to set in with So it is very important to push hard and push fast to build the pressure up, which keeps blood going to the brain. Pushing down at least 2 inches allows for the heart to be squeezed and blood to move out. Pushing at a rate of 100 to 120 compressions per minute is necessary to keep blood pumping. So can you see? Simple सी चीज है ये CPR, लेकिन पूरा बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, ब्रेन तक भी और दूसरे पार्ट्स तक भी। कितना जरूरी है ये। So now this you have seen, you understood कितना जरूरी है CPR करना। और ये रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है, बट ये करके आप किसी की जान बचा सकते हो। Now 2-3 more things about CPR. उसका फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब दिल की बात है, पल्मोनरी मतलब लंग्स, रिससिटेशन मतलब रिवाइवल। अब किसने सुना है कि CPR देते देते मुंह से सांस देने की जरूरत है? Anybody heard?
सुना है ना? नहीं भी सुना है तो हमने पिक्चर में देखा है। Yes, अगर हीरोइन movies. डूब रही है तो हीरो आ जाता है सीधा मुंह से सांस देने के लिए। जरूरत है नहीं है, डायरेक्टर ने बोला ये सीन तो मुझे चाहिए पिक्चर। बट रिमेम्बर ये सिचुएशन में आपको मुंह से सांस देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसको हैंड्स ओनली सीपीआर बोलते हैं, सीसीआर कार्डियो सेरेब्रल रिससिटेशन। तो आपने हैंड्स ओनली सीपीआर किया, वो काफी है उसको बचाने के लिए। तो आपको मुंह से सांस देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्लियर? सो व्हाट वाज आवर थर्ड स्टेप? सेंटर ऑफ द चेस्ट, चेस्ट कंप्रेशन। व्हाट वाज द रेट? 100 to 120. Going down? 5 centimeters. Super. What was our first step? No response, no breathing. It's a cardiac Step arrest. is called for a Cardiac arrest emergency. good. Yeah, you are too good. Superheroes, you are. चलिए, let's go to step number 4. Step number 4, we are going to learn how to use this AED machine. इसका full form है Automated External Defibrillator. इसको शॉक मशीन भी बोलते हैं। और अगर ये मशीन आपने दूसरे कोई शेप या कलर में देखा, so please do not worry. There are different manufacturers, but they all work the same way. चलिए अंदर से खोल के देखते हैं कैसे दिखता है। देखिए ऐसे दिखता है अंदर से। यहाँ पे पुल लीवर है। यू कैन सी द पुल लीवर, दिखा सबको? जब आपने ये लीवर पुल किया, अपने आप बताएगा आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। तो इसको पुल करके हम दिखा रहे हैं। अब हम इसको स्विच ऑफ करें आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आपने कभी ये मशीन यूज किया तो इसको हमेशा ऑन ही रखेंगे। क्लियर? तो जैसे हमने खोला, देखिए 2 स्टिकी पैड्स है अंदर। एक एक पैड के ऊपर पिक्चर दिया है। ये वाला राइट हैंड साइड बिलो द कॉलर बोन एरो दिख रहा है। The other one is on the left hand side below the ribs. So जैसे पिक्चर में दिया है हम वैसे ही peel off करके लगा के आपको दिखाने वाले हैं। Okay, put it there and show. Yeah, lift it up and show it to them. So जैसे पिक्चर में दिया है हमने वैसे ही लगाया है, और आपको भी वैसे ही लगाना है, क्योंकि हमारा दिल यहाँ पे है। तो जब शॉक लगेगा दिल के थ्रू जाना जरूरी है। क्लियर है? देखा हमने कैसे लगाना है? अब दूसरी चीज है, ये पैड्स को लगाना है ड्राई एंड वेट स्किन पे। मतलब अगर बारिश हो रही है, वाटर बॉडी से निकला है या पसीना हो रहा है, यू नीड टू वाइप दिस पोर्शन एंड स्टिक इट सो दैट दे स्टिक प्रॉपर्ली, ठीक से चिपके। अब वेट स्किन पे क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए? Because it is giving shock. कपड़े के ऊपर आपने लगाया तो शॉक नहीं देगा। हाँ, बेस्ट स्किन पे लगाना जरूरी है। अब ये छोटी सी मुश्किल है हमारे देश में, बिकॉज आदमी है तो कोई टेंशन नहीं है, शर्ट ऊपर करो, बटन खोलो, लगा दो। सेम चीज औरत को भी हो सकता है। रिमेंबर आई टोल्ड यू, इट कैन हैपन टू मैन, वुमन, चाइल्ड, एनीबॉडी। Yes. अब मॉडेस्टी हमारे देश में बड़ी चीज है। पब्लिक जा रहे हैं हेल्प करने के लिए, तो दूसरे लोग बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई यू रिमूविंग द क्लोथ्स ऑफ द लेडी। तो बचाना सबको है, करना है, हम अच्छे नियत से कर रहे हैं, बट एक छोटा सा सोल्यूशन है। अगर लेडी है, साड़ी पहना है, तब साड़ी ब्लाउज एडजस्ट करके लगा सकते हो। लेकिन अगर फुल सूट है, टाइट है, तो ये बॉक्स के अंदर देखिए एक कैंची है। आपको खाली एक कैंची निकालना है, इतना पोर्शन कपड़े का काट देना है, इतना पोर्शन कपड़े का काट देना है, पैड लगाना है। पूरा कपड़ा निकालने की जरूरत नहीं है। तो मॉडेस्टी इज ऑल्सो देयर, जान भी बचा लो। ठीक है? So we've attached the pads on dry and wet skin. Now let's listen to what the machine is saying. Machine on कर लो। Hold it up. No one should touch the patient. Analyze. It's analyzing उसका heart rhythm, जिसके ऊपर आपने पैड लगा दिया। No one should touch the patient. Analyze. Shock advised. Stay clear of patient. Press the flashing orange दिख रहा है आपको बटन, एक फ्लैश हो रहा है, बोल रहा है प्रेस द बटन टू डिलीवर शॉक। तो अभी हम प्रेस करने वाले हैं। shock delivered. शॉक डिलीवर। Be sure the ambulance service has been called. It is safe to touch the patient. Start CPR. तो मशीन ने क्या किया? CPR. जैसे आपने पैड लगा दिए, पहले उसका दिल एनालाइज किया। आपने तो चेक कर लिया, नो रिस्पॉन्स, नो ब्रीदिंग। मशीन इज रीचेकिंग दैट। Once the machine checks that, the machine will decide if the shock is required or not.
आप नहीं डिसाइड करोगे, ऐसा नहीं कि शॉक तो देना ही है, इसको कैसा भी करके। मशीन को लगा शॉक की जरूरत नहीं है तो मशीन खुद ही बोलेगा शॉक नॉट रिक्वायर्ड। बट इफ द मशीन फील्स द शॉक इज रिक्वायर्ड, देयर वाज अ बटन दैट वाज फ्लैशिंग, देखा आपने बटन? आपको खाली वो बटन प्रेस करना है। प्रेस करने के टाइम पे उसको झटका आएगा, शॉक आएगा, जो बाद में वीडियो में दिखेगा आपको। वो टाइम पे उसको छूना नहीं है। Why you don't have to touch him? Who's going to tell you? Because he is in shock. शॉक उसको लग रहा है, आप उसको छू रहे हो, शॉक आपको भी लग जाएगा। वो उधर लेटा, इधर आप लेटे होंगे, 1 + 1 3। So do not touch him. Only press the button. झटका आने के बाद मशीन बोलता है now it is safe to touch the person. Start CPR. So machine will be on, pads will also be there. You will continue CPR because the machine has asked you to do so. 2 minutes the machine is on, it allows you to do CPR. Then it goes into the second cycle. दोबारा उसका दिल चेक करेगा और डिसाइड करेगा उसको दूसरे शॉक की जरूरत है कि नहीं. It's not necessary in one shock his heart may start pumping. He may require 2, 3, 5, 10 shocks. But कितने शॉक देना है कौन डिसाइड करेगा? मशीन. आपको वही सुनना है और आपको वही करना है. याद रखिए मशीन इज मेड फॉर योर यूज. अगर मशीन आपके सामने है, डोंट बी स्कैर्ड टू यूज इट. गो यूज इट, यू कैन सेव समबडीज लाइफ. क्लियर? दो चीज और मशीन के बारे में बता दूं. ये मशीन बैटरी पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं. और बैटरी लाइफ इसका 5 इयर्स तक है. 5 इयर्स के बाद आप बैटरी बदल के वही मशीन यूज कर सकते हो मैन्युफैक्चर से. ओनली थिंग इज द पैड्स. ये जो पैड्स है ये 1 टाइम यूज पैड्स है. अगर आपने यूज किया, जस्ट होल्ड अप द पैड्स एंड शो देम. अगर आपने पैड्स यूज किया तो ये बदलना जरूरी है आफ्टर एवरी यूज. अनदर थिंग, ये मशीन का कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख. ओ माय गॉड, ये तो हम सुन के शॉक हो गए. लेकिन ये मशीन अपने घर में रखने वाली चीज नहीं है. इट्स नॉट एन एवरीडे यूज मशीन. सो जैसे पूरा कॉलेज कैंपस है, वहां पे एक मशीन लग जाए, 4-5 सोसाइटीज मिलके एक मशीन लग जाए, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हर जगह मशीन लग जाए तो हमारा देश थोड़ा सा सुरक्षित हो जाए. सोचिए सोसाइटीज में 4-5 बिल्डिंग मिलके लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक के पास तो गाड़ी रहती है 10-15 लाख की. तो 1 लाख सारे बिल्डिंग्स मिलके लगा सकते हैं मशीन. जैसे फायर एक्सटिंग्विशर अभी कंपलसरी हो गया है, वैसे 4-5 बिल्डिंग मिलके लगा सकते हैं. दिस कैन सेव समबडीज लाइफ. कितनी जरूरी है, राइट? ऑल्सो ये जो हम ट्रेनिंग लेते हैं ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो अगर आपको अपने फैमिली फ्रेंड्स है या आपके पेरेंट्स के ऑफिस में करना है, ब्रदर सिस्टर्स के कॉलेज में करना है, डू कॉन्टैक्ट अस. वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग. लेकिन ये लाइफ सेविंग हम सिखाते. अनदर थिंग इज, ये मशीन हम बेचते नहीं है. आपको लेना है तो आप Amazon या Google में जाके मैन्युफैक्चरर्स देख सकते हो एंड ऑर्डर द मशीन फॉर योरसेल्फ. वी आर ओनली डूइंग ट्रेनिंग्स. तो ये थे हमारे 4 स्टेप्स. लेट्स रिवाइज देम क्विकली. फर्स्ट स्टेप क्या था? No response, no सेकंड स्टेप यू कॉल फॉर अ cardiac emergency. स्टेप यू डिड हैंड्स ओनली CPR. उसका रेट क्या था? 100 to 120 or 5 centimeter. फोर्थ स्टेप यू लर्न टू यूज द AED. AED. Now we are going to again show you one small video. लेकिन उसके पहले 2-3 important point. One, scene safety is very important. अगर आपके सामने कोई गिर गया रास्ते के बीच में, रेलवे ट्रैक पे, फायर असाड है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट है, मेक श्योर यू टेक द पर्सन टू द सेफ प्लेस साइड ऑफ द रोड. डोंट से हीरो हीरोइन की तरह रास्ते के बीच में कूद के CPR स्टार्ट करो, गाड़ी आपको भी ठोक के निकल जाएगी. सो मेक श्योर यू आर सेफ बिफोर यू हेल्प समबडी एल्स. सेकेंडली, विटनेस फॉल इज इम्पॉर्टेंट. या तो आपके सामने कोई गिरा है, इसने बोला अभी तो गिरा है, तभी आप मदद करोगे. 3-4 घंटे गुजर चुके हैं तो इज नो पॉइंट इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स. एंड थर्डली, अगर बिस्तर पे होता है, पुट द पर्सन डाउन ऑन अ हार्ड सरफेस एंड देन ओनली डू कंप्रेशंस. क्लियर है यहाँ तक? Yes. चलिए लेट्स वॉच द वीडियो. रेड इन इंग्लिश. Watch this carefully. आपको मेरे 4 आवर्स और काम करना बहुत कॉस्ट है ना, मुझे भी अपने लिए.
हो गई बोला तुमने बोला हो गई हो गई हो गई Please help me please help me Response no breathing. It is a cardiac arrest. Position note कीजिए, elbow straight, pressure coming from the shoulders. There's no time waste. One person is opening the machine, attaching the pads. The other person is continuing CPR. Pads are attached. What are they? Alright. दिल को झटका लगने की वजह से आदमी को होश आ गया है, सांसें चालू हो गई, आपने जान बचा ली। इतनी बड़ी चीज है ये। Very nice. तब तक आपका कार्डियक एम्बुलेंस आ गया है। याद रखिए उसको हॉस्पिटल जाना जरूरी है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इवन इफ ही हैज सर्वाइव्ड। एंड 3 वीक्स लेटर पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा है। Young and old, it can happen to anyone, anytime. Nice. और हर एक मिनट आप सोचते हो मदद करोगे नहीं, उसके चांसेस जीने के घट जाते 10% से। तो प्लीज आगे जाके मदद कीजिए, जान बचाइए। ये हमारा वेबसाइट है, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। वहाँ पे FAQs है, ये वीडियोस भी हैं। आप गुड समैरिटन के जैसा वीडियो शेयर कर सकते हो। स्प्रेड द नॉलेज, व्हाटएवर यू हैव लर्न टुडे, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स को जाके सिखाइए। मेक श्योर यू गो एंड स्प्रेड दिस नॉलेज so that more people understand about it. But when you teach your family and friends, please don't tell anybody चलो लेटो मुझे CPR करना है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से चले जाए, आप एक दूसरे के ऊपर CPR करो। Because CPR is not, hello, CPR is not done on a person who is breathing. That is why heart attack जिसको हो रहा था, he was telling you he's not feeling well, he's getting chest pain. आपने उसको हॉस्पिटल ले गए, CPR नहीं किया, but only somebody who's collapsed in front of you, not breathing, not responding, is when you went ahead and do CPR. So understand the difference, but go ahead, help people, save lives. Will you? Yes. Okay, very good. So अच्छा, now iPhone जैसा। the question answer, जो भी आपके मन में सवाल है, प्लीज हमसे पूछिए। उसके बाद हम मैनी के नीचे रखेंगे, आप आगे CPR कर सकते हैं। Who wants to ask any questions? No doubt. कोई भी सवाल छोटा मोटा नहीं है, प्लीज आस्क whatever in your mind. Yes. जैसे हार्ट अटैक में से अटैक अच्छा, वो पूछ रहे कि हार्ट अटैक, जैसे फर्स्ट हार्ट अटैक हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, उसके बाद शायद कोई बचे नहीं, बट कार्डियक अरेस्ट ये भी हो सकता है, जैसे आपने ये वीडियो में देखा। वैसे आपने वीडियो में किसी को पहचाना? कोई? देखिए मैं एक ही उसमें जो हूँ जिसको पैसा नहीं मिला एक्ट करने के लिए, बाकी सबको पैसा मिल गया। ओके, तो क्या आप पैसा दे रहे हो? अच्छा, तो जैसे आपने वीडियो में देखा, हेलो, he came around, CPR किया, AED मशीन यूज किया, पर्सन came into consciousness और एम्बुलेंस आ गया। ये हमारे वीडियो में है बिकॉज वी डोंट हैव, वी वांटेड टू मेक अ दिस वीडियो। एम्बुलेंस इतना जल्दी आने वाला नहीं है, भले वो होश में भी आ गया, एम्बुलेंस नहीं आएगा आधा घंटे तक। वो टाइम पे आपको उसको रिकवरी पोजीशन में रखना है, मतलब साइडवेज टर्न करना है। जैसे अगर दिखाइए रिकवरी पोजीशन, अगर सीधा लेटा है तो ये साइड, नहीं तो वो साइड आपको उसको टर्न करना है,
ताकि अगर वॉमिटिंग है, फ्लूइड है, वो सब निकल सकते. एंड कीप मॉनिटरिंग दैट पर्सन बिकॉज इवन आफ्टर कमिंग राउंड ही मे गो बैक इनटू अ कार्डियक सिचुएशन. सो वो टाइम पे आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए. अगर मशीन है तो पैड्स भी रहने दो, लेट इट बी देयर, कीप मॉनिटरिंग हिम till your ambulance come, he may go back into a cardiac arrest. Also, sometimes heart attack जिसको हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, taking him to the hospital. Suddenly on the way you realize he has stopped breathing, stopped responding. So he has moved from a heart attack to a cardiac arrest. Immediately start CPR. So remember the difference. Heart attack, he's conscious, he's breathing, you will not do. But जैसे आपको लगा no consciousness, no breathing, you have to do CPR. भले हॉस्पिटल 2 मिनट की दूरी पे क्यों ना हो, आपने CPR नहीं किया वो नहीं बचेगा. तो CPR इज सो इम्पोर्टेंट. चलिए और कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस. मतलब किसी को कुछ समझ में आया है, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया? समझ में आया, सब समझ में आया. वेरी गुड. ऑल्सो आई सेड कि AED मशीन यूज करना है क्योंकि ये शॉक देता है. बट इट डजंट मीन कि AED मशीन नहीं है, कोई तार लटका है तो आप उसको घुसा दो. बिकॉज AED मशीन हमारे देश में मिलना बहुत मुश्किल है. सो यू कैन नॉट यूज एनी अदर इलेक्ट्रिसिटी. उसके जितने चांसेस है बचने के वो भी आप खत्म करोगे. सो AED मशीन है तो आप यूज करोगे, नहीं है तो क्या करोगे? कंटिन्यू CPR टिल योर एम्बुलेंस कम्स. हो सकता है आप पूछे कि हम ऐसी जगह पे हो जहाँ पे एम्बुलेंस ही नहीं है, जैसे कोई विलेज है, वहाँ पे कहाँ आपको एम्बुलेंस मिलेगा? आपको ही लेकर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल. तो क्या करोगे आप? CPR करते करते लेके जाओगे. मतलब बड़ा वैन या बड़ा गाड़ी लेके आदमी को लेटा के CPR करते करते आपको हॉस्पिटल जाना है. रिमेम्बर CPR इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट? Yes. ओके, चलो. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन. थैंक यू वेरी मच. आप बहुत अच्छे ऑडियंस से, लेकिन आपको आगे आना है. पहले देख लो गंदार एंड अथर्वा गोइंग टू शो यू CPR. फिर आप आगे आके एक एक करके CPR ट्राई करो. So please watch them first. Heel of the palm, center of the chest, hands interlocked. Come on top of the person and start. 1, 2, 3. Please notice how they are doing CPR. Elbow straight, full pressure coming from the shoulder. Okay, clear? यहाँ पे ये आना है आपको. चलिए, right come. Line by line coming. Yeah. This is our handle now. You tag us on Instagram. Okay. बेटा Insta ID लो. Take the photo of Insta ID. No, you send us a snap. Please at least take one. We will mention you, ma'am. Huh? In Instagram, we will Yes. mention you. In between, there will be live and your 6 photos and your 6 photos. We will mention. Come on, सबको करना है. Why there's nobody here? सबको आगे ट्राई करना है. Don't be shy. ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, खाली कंप्रेशन करना है. Come on, आगे आओ.